consider the K-map given below. So this is the K-map given, and here prime implicant is represented by Pi and essential prime implicant is represented by EPI full stop. Which of the following are correct and the question mark. So option A Pi is equal to 0, option B EPI is equal to 4, option C Pi is equal to 5, option D EPI is equal to 1. So यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको दो चीज़ निकालना है. फर्स्ट वन वी नीड टू फाइंड आउट Pi एंड द सेकेंड वन इज EPI. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप K-map को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, एंड एज पर द डेफिनेशन ऑफ Pi वी नीड टू मेक दैट ग्रुपिंग with the largest number of ones. तो यहाँ पर largest number of ones in a group it can form a quad. So we always have to start with the largest number of ones in a group. अब इस quad के बाद आपको यहाँ पर और कोई दूसरा quad नहीं मिलेगा. So to group that rest of the one here we need to look at for the second largest group. So second largest group यहाँ पे क्या बनेगा? So this is forming here one dual and this is forming another dual. This is forming another dual. This is forming one more dual here. This is forming one more dual here. So यहाँ पर हम लोग को 5 different sets मिल गया, and that 5 different sets are called as a prime implicant as per the definition. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पॉसिबिलिटी ये भी बनता है कि स्क्वाड का कोई ड्यूल एक सेट ये एक हमारा पी है वो हमारा गलत होगा. सो इस स्क्वाड का ये जो क्वाड है हमारा इस स्क्वाड का कोई भी ड्यूल इस स्क्वाड का सबसेट होगा, और प्राइम इम्प्लिकेंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सबसेट हम लोग को नहीं लेना है एज पर द डेफिनेशन ऑफ Pi. सो द नंबर ऑफ ग्रुप हेयर इट इज़ 5, सो दैट प्राइम इम्प्लिकेंट विल बी 5. अब हमको जानना है EPI. सो बिफोर गोइंग टू EPI वी शुड नो अबाउट दैट एसेंशियल वन. एसेंशियल वन का डेफिनेशन क्या होता है? तो एसेंशियल वन का डेफिनेशन होता है कि जो भी हमारे पास में यहाँ पे K-map है, ये जो हमारा ग्रुप बना है इसमें हमको देखना है वी नीड टू लुक एट फॉर ए वन वी शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ मोर देन वन ग्रुप और मोर देन वन Pi. सो यहाँ पर अगर ये वन की बात करें सो दिस वन इज द पार्ट ऑफ ओनली दिस dual. सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस स्क्वाड हेयर, सो दिस वन इज कॉल्ड एज एसेंशियल वन. Similarly, this one is called as essential one, this is called essential one, and this is called as essential one. So that we got number of essential one is equal to 4, and here we need to look at for the definition of EPI. So the definition of EPI means we need to look at for a Pi which should have minimum of one essential one. So यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों ड्यूल में हमारा essential one है, so ये चारों ड्यूल हमारा EPI होगा. और इसमें ये जो हमारा क्वाड है ये क्वाड में हमारा एक भी एसेंशियल वन नहीं है, इसलिए क्वाड हमारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट नहीं होगा. सो दैट फाइनल वी गॉट दैट आंसर Pi इज इक्वल टू 5 एंड EPI इज इक्वल टू 4. सो दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन B and C. So as I had given here this is MSQ, so that this both the answer are correct for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is consider the K-map given below. So this is the K-map given here. The minimal product of sum, that is POS expression, is option A under bracket y plus z into under bracket y bar plus z bar into under bracket w plus x into under bracket w bar plus x bar. Option B under bracket y plus z into under bracket w plus x into under bracket w bar plus x bar. Option C under bracket y bar plus z bar into under bracket w plus x into under bracket w bar plus x bar. Option D under bracket x plus z into under bracket x bar plus z bar into under bracket w plus x into under bracket w bar plus x bar. So in this question we need to find out POS, और POS निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो यहाँ पे जीरो का ग्रुपिंग करते हैं. सो अगर आप इस K-map को केयरफुली देखेंगे तो हम लोग को देखना वी नीड टू स्टार्ट विद द लार्जेस्ट ग्रुप. तो यहाँ पे हमारा एक क्वाड बन रहा है, यहाँ पर कोई भी ऑक्टेट नहीं बन रहा है. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड फॉर्मिंग हेयर. उसके बाद फिर दूसरा क्वाड हमारा यहाँ पे बन रहा है, और उसके बाद फिर तीसरा क्वाड हमारा यहाँ पर बन रहा है, और उसके बाद चौथा क्वाड हमारा यहाँ पर बन रहा है. सो यहाँ पर कोई भी रिडंडेंट टर्म नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर चारों टर्म लेना होगा. So to represent this, as we know that POS means we need to include their max term. Max term means the combination for which output is 0, so that for this quad also overall output should be 0.
So to get it here, this can be written as y plus z. So this will become here y plus z, and this group will become here. So this group we can write it here, it is 1 and 1. So हमको 0 चाहिए तो यहाँ पर क्या लेंगे? So we will take it here w bar plus x bar. So this will be w bar plus x bar. उसके बाद ये ग्रुप क्या लिखेंगे हम लोग? So ये ग्रुप लिखेंगे y bar प्लस z bar, क्योंकि हमको चाहिए आउटपुट 0 और यहाँ पे y 1 है, z 1 है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बार लिया है. अब उसका चौथा ग्रुप क्या होगा? So this is our fourth group. So here it is already 0. So we will write here w plus x. So here we can write this like, if you compare this, so we can say that w bar plus x bar is matching to this term, then y plus z is matching to this term, then y bar plus z bar matching to this term, then w plus x is matching to this term. So by that way, as it has taken MCQ, so that option A is the right answer for this question. And here this is the end of the explanation for this question. So the question here is, a contact network with 4 input relays W, X, Y and Z, which receives BCD numbers and produces a signal whenever the present number is 3 or a multiple of 3, full stop. The minimal sum of product, that is SOP expression of this function, is where W is MSB and Z is LSB. So here option A, f is equal to x y z bar plus x bar into y into z plus wz. Option B, f is equal to y under bracket x XOR with z plus wz. Option C, f is equal to x bar into y into z plus x into y bar into z plus wz. Option D, f is equal to x XOR with y into z plus wz. So here we need to find out the expression for this f. सबसे पहले हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर दिया हुआ है ये BCD है. सो BCD जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वैलिड BCD होता है 0 to 9 एंड हेयर वी आर हैविंग दैट 4 इनपुट WXYZ. तो यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन होगा और उस 16 कॉम्बिनेशन में जो भी 3 का मल्टीपल होगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट 1 होगा. सो एज लाइक 3, 6, 9. अब यहाँ पे 9 तक ही हमारा वैलिड है, तो इसीलिए यहाँ पर के मैप में देखेंगे तो यहाँ पे 3, 6, 9. सो दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 9, हेयर 1. और उसके बाद 9 के बाद जो भी होगा वो हमारा क्या होगा? डोंट केयर होगा. सो 10, 11, 12, 13, 14, 15 विल बी द डोंट केयर. और उसके बाद यहाँ से 0 to 9 में ये जो हम लोग को देखना है कि यहाँ पे जो भी आउटपुट 1 नहीं है, इसका मतलब कि वो 0 है. सो ये सब यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है. सो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे. सो ये एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसका इनपुट है WXYZ. सो इसका फंक्शन क्या होगा वो हम लोग को निकालना है. तो यहाँ पे इसके मैप से आपको दिखता है कि यहाँ पर जब इसको कंबाइन करेंगे या क्वाड बनाएंगे तो ये मिलेगा W इंटू Z और यहाँ से मिलेगा आपको x बार इंटू YZ. सो ये ड्यूअल से और ये ड्यूअल से मिलेगा x y इंटू Z बार. सो डैट वी कैन राइट दिस फंक्शन f इज इक्वल टू x इंटू y इंटू Z बार प्लस x बार इंटू YZ प्लस WZ. सो दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन A. और उसके बाद इसी को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे x z बार प्लस x बार z, y विल बी कॉमन प्लस wz. सो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं x XOR विथ z इंटू y प्लस wz. सो दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन B. सो एज इट हैज़ गिवन दैट दिस इज MSQ, सो दैट राइट आंसर विल बी A and B. सो दैट आंसर विल बी ऑप्शन A and B. So the question here is, consider a Boolean function given below. So f is equal to a into b into c bar into d bar plus a into b bar into c bar into d plus a bar into b bar into c into d plus a bar into b into c into d bar. The sum of minimum number of XNOR gate and NOR gate required to implement the above function is. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कई बार सोचते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ ये NAND NOR बेस्ड आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. ये यहाँ पे XNOR और NOR से भी पूछा जा सकता है. तो देखते हैं हम लोग अब. तो यहाँ पे ये हमने f इज इक्वल टू ये फंक्शन लिखा, तो यहाँ पर जब इन दोनों टर्म को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से a c बार कॉमन आएगा. सो डैट वी विल बी हैविंग b d बार प्लस b d बार प्लस इन दोनों टर्म को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा. सो हेयर इफ यू टेक a बार c कॉमन देन इट कैन बी रिटन एज b बार d प्लस b d बार. So here we can write this AC bar into B XOR D plus A bar C into B XOR D. अब इन दोनों में हमारा B XOR D कॉमन है, so that we can write it here AC bar plus A bar C
देन वी कैन राइट इट हियर A XOR C इंटू B XOR D। अब यहाँ पर हमको ये मिल गया एंड और XOR गेट के फॉर्म में, तो यहाँ पर बनाते हैं सर्किट। सो ये हमारा सर्किट हो गया, 2 XOR गेट और एक AND गेट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि XOR गेट के आउटपुट में अगर बबल डालते हैं तो ये हमारा XNOR गेट होता है, ये भी हमारा XNOR गेट हो जाएगा। और इस बबल के इम्पैक्ट को नलीफाई करने के लिए यहाँ पर एक बबल डालते हैं और यहाँ पर एक बबल डालते हैं। सो नाउ देर इज nullifying the effect of this bubble by this bubble and for this bubble by this bubble, so that here now this bubble and is called, this bubble and is equivalent to NOR gate। तो यहाँ पर अगर आप इसको बनाएंगे फिर से, सो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा होगा। सो यहाँ पर ये हो गया हमारा NOR गेट। सो आप देखेंगे तो इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको कितना XNOR गेट चाहिए, तो 2 XNOR गेट चाहिए और एक NOR गेट चाहिए। सो यहाँ पर ये XNOR गेट हमको लगेगा इसमें 3 और उसके बाद NOR गेट लगे, ये XNOR गेट लगेगा यहाँ पर 2 और NOR गेट लगेगा 1। सो दैट combining these two, the answer for this one will be 3. So this is as like NAT, so that the answer for this question will be 3 here. So by this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here, consider a Boolean expression f is equal to w bar into x into y bar into z bar XOR with w bar into x into y into z bar XOR with w into x bar into y bar into z, where number of literals is denoted by p and number of literal count is denoted by q. The minimum value of p comma q required to express the above expression is option A 7,7, option B 12,7, option C 7,12, option D 12,12. So here first of all I would like to recall you about that variable literals and literal count. So यहाँ पर अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, मान लीजिए A और B, तो यहाँ पर जो हमारा लिटरल्स होगा वो क्या क्या हो सकता है, तो A बार, B बार। सो अगर वेरिएबल है 2 तो लिटरल होंगे 4, अगर वेरिएबल है हमारे 3 तो लिटरल होंगे 6। इसका मतलब वेरिएबल है अगर हमारा n तो लिटरल्स हो जाएगा 2n। अब लिटरल काउंट क्या होता है, तो यहाँ पे किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कितनी बार लिटरल्स हम लोग यूज़ करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ए लिटरल काउंट। जैसे इसमें यहाँ पर a यूज हुआ है एक बार, फिर यहाँ पे a बार यूज हुआ है एक बार। सो यहाँ पर ये होगा a के बदले में 1, a बार के बदले में 1, और c हमारा यूज हुआ है एक बार। सो यहाँ पर c बार यूज हुआ है एक बार और b यूज हुआ है हमारा 2 बार। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लिटरल काउंट हो जाएगा, सो यहाँ पर 6। अब ये इसी को बेस बना करके अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम पी एन क्यू दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप इसको अनसिम्प्लीफाइड में एक्सप्रेस करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पर एग्जाम में कि क्या हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको दिखेगा कि डब्ल्यू बार इंटू एक्स इंटू जेड बार इज़ कॉमन इन बोथ द टर्म्स। सो यहाँ पर क्या मिलेगा, सो यहाँ पर मिलेगा आपको y बार XOR with y XOR with w x बार y बार z। सो जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ XOR गेट से जानते हैं कि y बार XOR with y होता है 1, सो वी कैन राइट हेयर w बार x z बार XOR with w इंटू एक्स बार इंटू वाई बार इंटू जेड। सो अगर आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ लिटरल्स एंड नंबर ऑफ लिटरल काउंट दोनों आपको 7 मिलेगा। सो दिस इज w बार एज ए 1, w हेयर एज ए 1, सो यहाँ पे 2 लिटरल हो गया। फिर यहाँ पर x और x बार तो फर्दर 2 लिटरल हो गया। फिर यहाँ से z बार तो फर्दर 2 लिटरल हो गया और एक y बार। सो यहाँ पर नंबर ऑफ लिटरल्स हमको मिलेगा, number of literals is equal to 7, and here number of literal count is also same. Number of literal count
इज ऑल्सो 7। सो जैसे कि हमने दिया है कि ये MCQ है तो इसलिए एक आंसर सही होगा। सो एज पर दिस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन।